Hello everyone, assalamu alaikum, and thanks for joining us. Thanks for watching my lectures. We are discussing here the profit and profit maximization. So today's topic, that means we discuss the production, we discuss the cost. Now we are moving forward and we will discuss about the revenue, cost and profit in this lecture. First of all, we understand what is profit. So profit, if you are a production manager, if you are dealing in a firm, so that's mean you know that a firm maybe they are producing one good, they are producing so many goods. So if they are producing, let's suppose so many goods, this is mean the QI. So how can we discuss about the QI? And if they are if they are using they are producing the QI, so every product has the ith price, is it? So when we will take the product of production and their price, so we can get basically the total revenue. So let's suppose if you are producing X item and the price of the X is P1, so P1 into X, so that means this will be the total revenue or total sale of the good one. So this is about the total revenue, and we know that the cost curve shows that the WL plus RK, in which we say that you are using the cost. So definitely for the production of any item you are using the labor and you are using the capital. So we will convert it in this as a cost function, and cost function is the function of the R, W and Q. So you know that at the time of the cost, the R and W is taking as a fixed constant because the cost is mainly the function of remaining is a production and output. तो यहाँ तक हमें बात को समझने की ज़रूरत है कि जो आउटपुट होता है उस पे दोनों चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं. 3 नंबर मतलब हमारा रेवेन्यू भी और प्राइस भी और कॉस्ट भी, तो हम इस एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं. सो व्हाट द प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय द पाई, and we are saying the pi mean profit. So profit is equal to the total revenue, and revenue is representing by the R of Q, mean R is a function of the Q, and minus cost, and the cost is also function of the Q. And we know that we have discussed that revenue is coming from this equation, and the revenue is equal to P into Q, and P is also function of Q. The price जो है वो भी देखिए quantity पे determine करती है according to law of demand. So this is all about the previous equations, and now finally we will focus on this equation. The profit is the function of the revenue minus cost. ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका टोटल रेवेन्यू 100 रुपये है और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में आपकी टोटल लागत जो है वो आपकी आई है 60 रुपये, तो 100 में से 60 को निकाल दें तो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट. दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट. दैट मीन बेसिकली यू अर्न दैट प्रॉफिट, द फर्म अर्न दैट प्रॉफिट. सो नाउ वी डिस्कस द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर. Number one is this: we have to discuss the curve. When we are discussing about the curve, so we will say that this is basically our curve, and here we are saying that this is the total revenue and this is an output. It's very simple. Output बढ़ाते जाए revenue आएगा. Revenue आएगा, we are not saying about the profit. अगर आप आइटम एक भी नहीं बनाएंगे तो रेवेन्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर आप आइटम बनाएंगे उसको मार्केट में बेचेंगे, 10 आइटम बना के बेच देंगे तो आपको 10 आइटम की प्राइस लगा के उसको आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा. तो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन से दैट द रेवेन्यू कर्व लुक लाइक दिस, टोटल रेवेन्यू, और ये इज वेरी commonly dependent on the output. So what will be the cost curve? Because we have to think in both curves together. That's why we can analyze that कि what is. अब हमने कॉस्ट कर्व पे काफ़ी डिस्कशन की है पिछले लेक्चर्स में. हमने शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व पढ़े, लॉन्ग रन पढ़े, फिर हमने लीनियर कॉस्ट कर्व पढ़े, फिर हमने क्यूबिक कॉस्ट कर्व कर्वी लीनियर पढ़े. सो दैट्स मीन वी डिसाइडेड द कॉस्ट बिहेवियर इज वेरी जनरल लाइक दिस, कि कॉस्ट आपको इस तरह से मिलती है. तो अगर ये आपका कॉस्ट कर्व है, टोटल कॉस्ट कर्व, और ये आपका रेवेन्यू कर्व है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
so you can easily just recall your previous concepts and you can find out कि what is happening here. अब जानने की ज़रूरत ये है कि आपको कहाँ पर ऐसा है कि प्रॉफिट मिल रहा है. अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि if it is your cost curve, so at all region in this region you are basically in loss. Why? Your cost is continuously increasing, however your revenue is low. अब आप 100 रुपये की लागत लगा रहे हैं और कमा सिर्फ जो है वो 60 रुपये रहे, तो आप 40 रुपये लॉस में हैं. यहाँ आपका लॉस कम है और एक पॉइंट आया कि आप मैक्सिमम लॉस उठाने पे तैयार हो गए इधर इस पॉइंट पे. यानी इस पॉइंट मीन कि आपका जो ये Q है इस पे आप जो ले रहे हैं वो मैक्सिमम लॉस ले रहे हैं Q1 पे. ओके, लेकिन ग्रेजुअली स्लोली आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक पॉइंट आता है सर्टेन दिस पॉइंट जिस पे आपका ब्रेक इवन आ जाता है और हम कहते हैं कि यहाँ पर आपने जितनी की लागत लगाई उतने ही आपको रेवेन्यू हो गया. सो इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. यहाँ पर आपको नो लॉस एंड नो प्रॉफिट आपको यहाँ पर है और ये जो आपका आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके पास Q2 हो रहा है. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस एरिया. हम ब्रेक इवन से पहले ये लॉस की कंडीशन में फर्म बात करना नहीं चाहती. फर्म आगे की तरफ बात करेगी और देखेगी हमें अब कितने आउटपुट तक जाना है कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें. अगर इससे ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, रेवेन्यू कम आएगा और हमारे प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन नहीं आएगी. तो हम इतना प्रोड्यूस करें कि जितना हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो जाए. So when we are discussing the condition of the maximum profit, so basically we have to take the derivative condition. We have to use the first order condition. So when you are taking the derivative condition, so basically you have two different type of conditions. One condition shows about the necessity and other is shows the sufficiency. So what is the necessity condition and what is the sufficient condition? We will discuss here. अब आपने यूज़ करनी है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अगर आप यूज़ करते हैं इधर तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू Q. तो आप ये कहेंगे कि मुझे कितना मैं Q में तब्दीली लेके आऊँ कि मैं प्रॉफिट ले सकूँ. और मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, दैट्स मीन कि मार्जिनल रेवेन्यू ये जो बनता है आपका चेंज इन प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू दिस इज कॉल्ड द बेसिकली द मार्जिनल रेवेन्यू. अगर ये जो कंडीशन है आपकी ये मार्जिनल प्रॉफिट है, मैं कहता हूँ मार्जिनल प्रॉफिट को आप कर दें ज़ीरो के बराबर तो आप अपनी मैक्सिमम कंडीशन को उठा सकते हैं. अब देखें कैसे. जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो बेसिकली ये भी मैं डेरिवेटिव लूँगा, अप्लाई दोनों पे करूँगा और यहाँ भी लूँगा. तो ये बन गया रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेने से ये बन गया मार्जिनल रेवेन्यू और ये बन गया मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल प्रॉफिट को आपको करना है ज़ीरो टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ MR माइनस MC को, तो इस कंडीशन में जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो वी विल फाइंड आउट द कंडीशन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन MR इज इक्वल टू MC. यहाँ से देखें हासिल हो रही है. तो पता ही चला कि इफ़ यू वांट टू सी द मैक्सिमम प्रॉफिट तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए. सो हियर यू हैव रिसीव द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. सो अब आगे देखते क्या है कि अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अचीव हो चुका है, सो इसका मकसद ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू तो मीन कि आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है एट ऑल पॉइंट योर स्लोप इज सेम. मार्जिनल रेवेन्यू मीन स्लोप ऑफ द रेवेन्यू कर्व. नाउ वी हैव टू सी द मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट ये बात कह रहा है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ द रेवेन्यू कर्व स्लोप ऑफ द कॉस्ट कर्व के बराबर हो. तो हम ये बात देख रहे हैं कि दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर स्लोप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो रहा है.
ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, एक Q1 है और एक Q3 है। अब अगर वो कहता है कि ये वाले पॉइंट हमारे पास आ जाता है तो हम तो मुकम्मल लॉस में हैं। तो टू अवॉइड दिस पॉइंट, और हमें ये वाला पॉइंट लेना जिसमें रेवेन्यू सबसे ऊपर है, कॉस्ट नीचे है। टू अवॉइड दिस कंडीशन वी हैव टू अप्लाई दी सफिशिएंट कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन ये है कि पहले प्रॉफिट फंक्शन का हम लेंगे डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, और फिर हम अपने प्रॉफिट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और फिर हम देखेंगे क्या वो नेगेटिव आ रहा है। अगर वो डिक्रीजिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हमारी सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और MR इज इक्वल टू MC इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, और हम आराम से अपनी वो क्वांटिटी निकाल सकते हैं जिसके ऊपर हमारी जो है वो प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रही होगी। फॉर दिस पर्पस हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं और तब हम देखते हैं कि क्या हम आसानी से इसको जान सकते हैं। देखिए, अगर एक कॉस्ट फंक्शन अवेलेबल है, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन, तो हम सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो उसका डेरिवेटिव आएगा सिंपल 4, तो मार्जिनल कॉस्ट मेरे पास 4 आ जाएगी। अगर ये डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व को अगर मैं सॉल्व करता हूँ लेट्स सपोज P के लिए, तो P को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 5P पॉजिटिव और 50 अपनी जगह रह गया, ये -Q हो गया, ऐसे ही होगा। अब मैं यहाँ से P को अगर और मज़ीद सेपरेट करता हूँ तो 5 को डिवाइड करा देता हूँ पूरी इक्वेशन से, तो 50 डिवाइड बाई 5 - Q ओवर 5 ऐसे ही हो जाएगा। एंड देन जब मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 10 - Q ओवर 5। अब ये प्राइस है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन अभी तक मैं रेवेन्यू पे नहीं पहुँच सका हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इंटू Q कर दूँ तो ये हो जाएगा P इंटू Q, और P इंटू Q का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं 10Q ले लूँ और -Q स्क्वायर ओवर 5 ले लूँ। यहाँ पर P इंटू Q इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू हो गया है, तो मैंने टोटल रेवेन्यू हासिल करने में फ़ायदा अचीव कर चुका हूँ, 10Q - Q स्क्वायर ओवर 5। अगर मैं इसका मार्जिनल रेवेन्यू ले लूँ तो मार्जिनल रेवेन्यू में मैं Q से जब लूँगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस, और ये में हो जाएगा आपके, जैसे ही मैं इसको Q स्क्वायर को नीचे उतारूँगा तो हो जाएगा 2Q ओवर 5। So this is marginal cost, this is marginal revenue. अब now I am just equating these thing to get the maximum profit. तो 10 - 2Q over 5 is equal to 4. और अगर मैं इस माइनस को वहाँ ले जाता हूँ और 4 को यहाँ ले आता हूँ, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन आई एम सॉल्विंग हेयर, तो 6 इज इक्वल टू 2Q over 5। एंड अगर मैं मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो ये आप देखते हैं कि 5 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ कि 30 हो जाता है, 30 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो मुझे Q यानी कि Q इज़ इक्वल टू 15। तो ये वो मेरा पॉइंट होगा, ये वो मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगी Q इज़ इक्वल टू 15, ये वो मेरा Q3 होगा जहाँ पर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकता हूँ। सो वी समराइज अवर लेक्चर। This is the formula of the profit. We have discussed two conditions, necessary and sufficiency, and we find that we have the two Q's achieved where the MCR is equal to MR. So to avoid the this Q, we use the sufficient condition, and when we will follow the condition of the MR is equal to MC, so we will say that at this output level the firm can maximize its profit. This is all about the profit and profit maximization. I hope you learn about it. So please subscribe our channel for more economics and statistics videos. Thank you very much.